I always wanted to be a filmmaker. Okay. And that was my ultimate aim, to write ठीक है. books, make films. That's where the whole initiation into filmmaking happened. I was in Kannur, which is in Kerala. और वहाँ पे तेय्यम करके बहुत famous dance form है. Okay. Very similar to the one that you saw in Kantara. Not the same, it's different. Okay. But similarity है it's ठीक. मतलब पास का ही region. And suddenly our discussion went to a completely different direction. And there suddenly I realized, and even after a lot of people used to ask me doubts about these daivas and Ruta, वहाँ पे मुझे लगा I think it's time to go back to Tamil Nadu, explore my roots, and उसके साथ साथ I explore Daiva. The first part of the book, it's this journey, and this journey में I'm explaining what is Daiva, the spirit worship, what are the spirits, and what are the types of spirits, what is a possession ritual. वो सब मैंने इसमें एक्सप्लेन किया so that the reader outside this community can also understand. Now let's move into the world of spirits. हाँ. क्या क्या है मतलब like what you have said is इस बुक में spirit worship को दिखाया गया है. देवा मतलब हम इसको भूत नहीं बोलते हैं या spirit या कुछ और नहीं बोलते, इन सबको देवा बोला जाता है. But what kind of worships are there and what kind of possessions are there? मानना ये था कि ये जो देव है, ये जो स्पिरिट्स है, अगर इनको कोई पसंद आ गया, कोई आया है अटेंडेंस में है या कोई आप जैसा जो भी है, वो उनके बैक पे लैच करके उनके साथ चले जाते हैं. तो जो भी करेगा कला के क्षेत्र में करेगा, ये जिंदगी उसी में है, और जो भी तो करेगा उस क्षेत्र में, इट विल हैव समथिंग टू डू विद द अनडेड. On that note, this is a brand new episode of What's Up Abi. Joining me today in conversation is K. Hari Kumar with his brand new book, Daiva. What's up? How are you, man? I'm good. The summer is... हम दिल्ली में पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, गर्मी में एकदम दोनों झुलस चुके हैं. पुणे से आने के बाद मेरे को लग रहा है पुणे ही बेटर Better, but I miss Delhi because I was brought up here. True. Where were you brought up? Where were you raised? ऐसा बात करते हैं. Not exactly Delhi, Gurgaon. ठीक है. NCR है. टोमेटो वाला सीन. हाँ, Zomato वाला scene है. So yeah, I was brought up in Gurgaon. I was here for like 18 years of my life. 18 years of my life. yeah, proper Delhi height. मतलब खाना वाना अच्छे से. खाना वाना ज़बान भी. बढ़िया. My engineering here in Haryana, so. Oh, super. And मतलब you're like born into a Mallu family. It's not Mallu, it's Tulu family. अच्छा, okay. But the Tulu is the southern Karnataka wala region. Right. Udupi. From there, my great grandfather, they migrated to Kerala. Okay. Since then, they have been in Kerala. So you're basically a Tulu living in Kerala. My parents are like that. I am a Tulu whose parents were in Kerala, and I was brought up in Delhi, and now I'm in Pune. So वाह. a blend of everything. That's the unity. Unity and diversity यहाँ से निकल रहा है. And the curious part is जब आप एक नॉर्थ बेल्ट में एक हार्ड कोर नॉर्थ सिटी में लाइक गुड़गांव में born and raised हो, पढ़ाई यहाँ पे, डायलेक्ट यहाँ का, लैंग्वेज यहाँ का, what actually drew you to Deva and write mythology from Tamil Nadu? So इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है. ठीक है. थोड़ा मुझे रिवाइड करना. ठीक है हाँ. So we are going to 2017-18 का time. ठीक है. I was working. I'm an engineer. I was an engineer. Okay. I was working in a corporate setup. Okay. And Delhi में? I was working in Bombay. Okay. So it was at that time when I had written 2 books. Okay. But not really a serious writer. And I always wanted to be a filmmaker. Okay. And that was my ultimate aim, to write ठीक है. books, make films. What about creative life? ठीक है. A simple creative life. ठीक है. So, but I didn't know how to go about वो सब था. It was at that time one of the top directors in the country, Mr. Sangeet Shivan, he had read one of my books, the second book at that time, and we kind of we got up in Bombay, and that's where the whole initiation into filmmaking happened. Okay. And I got my first offer roughly at that time, and to write a film, and I decided to quit my job. Oh, okay. Yeah. A good, well-paying corporate job, and that's when my mother, she's a very religious, simple woman, and she's the reason why I still speak Tulu, my mother tongue.
I was brought up here. in Right, Delhi. agreed. Nobody speaks Tulu around. At least where I मतलब was. very rare. It's a very rare language anyway. Very seldom you'll find people Yeah. speaking Tulu. बॉम्बे में फिर भी लोग हैं तो भी मिल जाएंगे. बट दिल्ली में I mean, I was And for all those people who are wondering, Tulu कौन सा region है? Like Mangalore वाला जो belt है, that is Tulu speaking. A lot of Shettis, Right. if you find around, they are Tulu speaking people. Yeah, absolutely. Aishwarya Rai. Aishwarya Rai, yeah, true. Best example. Yeah. So, Rishabh Shetty, Kantara's director. Sunil Shetty. Well, I don't know whether he speaks Tulu or not, but he's from that I'm belt. sure he does. So, anyway, come back to the story. So, it was at that time that my mom was like very tense. इस बच्चे को क्या हो गया, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है. So she started frequenting this astrologers. कुछ तो बताओ, एक तो शादी की भी उम्र हो गई है, यहाँ पे जाके ये जॉब क्विट कर रहा है, क्यों? तो so I was so in Kerala there is this concept of Velichapad. Okay. ठीक है, Velichapad is an oracle. What is it, oracle? मतलब like Oracle as in temples में वगैरह वगैरह. There's this person who wears this red sari kind of a thing, या red धोती, हाथ में एक सिक्कल होता है, okay, and they get this माता inside, okay, like a भगवती. ठीक है. जैसे हम माता चढ़ना वगैरह. So they get possessed by this spirit, and then they do prophecies and solve disputes. ठीक इस है. तरह से concept है वहाँ. ठीक है. मैं एक oracle ही कहूँगा. ठीक है. Okay. तो वैसे एक टेम्पल में इट्स वेरी स्कैरी. Okay. वैसे धीरे धीरे बोलते हैं, ऐसे कर लेते because they are They are possessed. Okay. that's the belief. Okay. ठीक है. ठीक है. So I was at this temple and it was my mother had taken me to the temple and वहाँ पे suddenly this oracle thing was happening and suddenly this one grabs my hand and he doesn't know me, I don't know him. I was new to that place and this guy out of the blue says कि तू जो भी करेगा कला के क्षेत्र में करेगा, तेरी जिंदगी उसी में है और जो भी तू करेगा उस क्षेत्र में it will have something to do with the undead. अनडेड कुछ भी हो सकता है. सही बात है. एंड इन कोइंसिडेंटली जो मेरे पास मेरी पहली फिल्म मुझे जो ऑफर की गई थी, इट वाज नॉट माय स्टोरी, इट वाज समबडी एल्सेस स्टोरी एंड दैट हैपेंड टू बी अ हॉरर स्टोरी. ओह. एंड उसके ठीक बाद अ बुक वाज ऑफर्ड टू मी टू राइट ऑन द कांसेप्ट एंड दैट वाज आल्सो अ हॉरर. इट्स कॉल्ड इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड. Okay. It's a book. And then the series that happened again horror, somebody else's concept. तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे एक इंटरेस्ट आया कि इसने ये बोला. And one thing that this guy, this oracle said was, ये इसलिए हो रहा है तेरे साथ क्योंकि तेरे पूर्वजों की एक कार्मिक लीगेसी है, उसके चलते ये हो रहा है, जाओ उनको ढूंढ के आओ. Oh. This was the word as a. But अगर legacy है, so your dad must have followed, your grandfather No, was they there? have not. नहीं. It's lost somewhere. It's a Oh, so legacy. it's your responsibility to find it. To find trace that. it. हाँ. So somewhere for me as a writer, this interested me, this intrigued me. Agreed. ये story बन सकता है. जैसे वो ब्रह्मास्त्र में रणवीर हाँ, चला जाता है. वैसे ही it's a hero's journey kind of a story. ठीक है. Narrative. So I decided तो थोड़ा उस टाइम मैं फिर this is long back 2018. तो वो मैं ट्रेस करने लगा कि लाइनेज क्या है, कौन कहाँ से आया है. तो 3-4 जनरेशन तक तो मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला, उससे पहले का कुछ भी नहीं. वो फिर बहुत डिस्पर्स है. दे माइग्रेटेड फ्रॉम दिस रीजन तुलु. बट देन वो कहीं ना कहीं खो गया क्योंकि आई वाज बिजी विद माय वर्क. इस तरह से देन इट वाज इन 2022 when I was invited on a podcast, very famous podcast, Beer Biceps. Uthar, we were, the host was talking to me and he asked me about my, that was Horror by Khawa podcast, because I was writing horror. So he asked me a question कि what is your inspiration for horror? तो मैं ऐसे ही बता रहा था, बस मतलब कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ, तो बचपन का एक इंसिडेंट रिकलेक्ट कर रहा था. I mentioned कि I was in Kannur, which is in Kerala. और वहाँ पे तेयम करके बहुत famous dance form है. Okay. Very similar to the one that you saw in Kantara. Not the same, it's different. Okay. But similarity है, मतलब पास का ही region. तो वो सुन के the host suddenly connected it with Kantara and he asked कि Kantara वाला है क्या? And suddenly our discussion went to a completely different direction. And there suddenly I realized, and even after a lot of people used to ask me doubts about these daivas and Uta.
वहां पे मुझे लगा आई थिंक इट्स टाइम टू गो बैक टू तुलनाडु, एक्सप्लोर माई रूट्स, एंड उसके साथ साथ आई एक्सप्लोर दैवारा, Okay. एंड दैट्स हाउ दिस बुक बिगैन. How does one explore their roots? Like, for example, I am a Bengali born and raised in MP. अब मैं अपने पापा की बात करूंगा तो वो बनारस में पैदा हुए, कानपुर में रहे, जबलपुर आ गए. ग्रैंडफादर की बात करूँ, वो बनारस में रहे, वही कानपुर में, जबलपुर. उनके आगे को तो पता ही नहीं है. How does one do that? You take a leap of faith. Okay. बिकॉज अगेन जो भी आप 3 जनरेशन तक जो हमारे फैमिली में जो भी कॉन्टैक्ट्स है, जो भी जिंदा है, वो थोड़ा बहुत बता देंगे. वो थोड़ा बहुत बता देंगे. उसके ऊपर का वही मुश्किल हो जाता है. तो बट देन वो फैमिली का, एक तो हमारे यहाँ सरनेम नहीं होता. Oh, you use a dad's name as a I don't even use that. I mean, Okay. मेरा तो हरि कुमार नाम है. Okay. So it's agreed. It's It's and whatever. agreed. It's just Kumar is Kumar. Kumar. Hari is the name. Hari Kumar is इस तरह से. एंड फैमिली नेम फिर वो ढूंढना पड़ा, डिग किया. फाइनली 1-2 ऑप्शंस मिले कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. ये पूर्वज वहां पे शायद वो किसी मंदिर के पास रहते थे. इस तरह से ढूंढ ढांड के आई समहाउ अराइव्ड एट 3-4 प्लेसेस. और सब जगह गए. एंड एक और चीज थी, दिस ओरेकल आल्सो मेंशन्ड, एंड दिस वाज आई थिंक सम अदर ओरेकल और एस्ट्रोलॉजर मेंशन कि देयर वाज सम दैवा that my great grandfather used to worship and he stopped worshiping it क्योंकि वो माइग्रेट कर गए थे. तो अपने साथ उसको लेके नहीं गए. that daiva is still waiting for you and it's probably a mother goddess, a female deity. Okay. तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, ये भी ढूंढ के निकलना है मुझे. तो इस तरह से फिर ये हुआ, इंटरेस्ट आ गया. and then I was finding out 2-3 महीने लगा के I found out a few things and उसके साथ साथ ये भी क्योंकि इट्स कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर दैट दैवा दैट माय एंसेस्टर्स यूज्ड टू वर्शिप. ओके. आई थिंक आई हैव फाउंड द दैवा, बट अगेन हाउ कैन वी कंफर्म इट? Again, nobody knows. It's just a leap of faith. That's why I said it's a leap of faith. So that's the journey. Even in the book, the first part of the book, it's this journey. And this journey mein I'm explaining what is Daiva, the spirit worship, what are the spirits, and what are the types of spirits, what is a possession ritual. वो सब मैंने इसमें एक्सप्लेन किया सो दैट द रीडर आउटसाइड दिस कम्युनिटी कैन आल्सो अंडरस्टैंड. इवन द रीडर्स ऑफ द कम्युनिटी हु हैव माइग्रेटेड टू बॉम्बे एंड बैंगलोर एंड द यूएस, दिल्ली, मेट्रो सिटीज में, even they are not very linked with these traditions. So it's a good way to understand your culture. Okay. And for non-Tuluas, it's a good way to understand the mythology of that the culture which is part of this country. True. Which doesn't get that mainstream attention. हाँ, मतलब अगर आप लैंग्वेजेस की भी बात करो, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु जो है, तुलु इतना, despite having so many speakers. Yeah. At least जो a very beautiful belt, man. Like, it's a beautiful belt. It's a beautiful language. It's a अच्छा. It's a sweet. Tulu का मीनिंग ही है something that's flowing. Oh. पानी जैसा जो फ्लो करता है. And the language is very sweet. The people are sweet. And how old is the history? मतलब क्या लगता है कितना? I think it's at least 2,600 years old. Okay. At least that's what I have from my research. And but ये scripted नहीं है, right? We were having this conversation before, like shooting, कि इसका literature नहीं है because ये script नहीं है. So script नहीं है, or maybe it was there but it's lost. Okay. Whatever the reason, there's no script. But around few centuries ago, the priests who traveled to Kerala to learn Agama Shastras, they picked up a script which was based on the Grantha script. Okay. Looks a bit like Malayalam and Sinhalese. Okay. उसके बेसिस पे they made a script so that they could record these mantras and all. ठीक है, makes sense. Yeah. So but उतना ही है, folklore और ये सब नहीं मिलेगा. Folklore. So that script was only used by these priests and all. Okay. It was never recognized as the official script. But now the effort is to recognize it as the official script. And the government, the Tulu Sahitya Academy, they are doing a lot of things to recognize it. Courses हैं, school में courses हैं. Because the thing is that this language is not officially recognized by the Constitution of India. Oh, that is the sole reason, I guess. Yeah, so it's been pitched and still we are waiting. And there are so many dialects of this Tulu. The Tulu I speak is entirely different from the Tulu that the people speak in Bangalore and the people who speak in northern side of Tamil Nadu. Oh. बहुत variants हैं. The people in Kasaragod, they speak a different kind of Tulu, which is in Kerala. बोलियां change हो जाती हैं. बोलियां change होती हैं. बहुत ज़्यादा changes हैं. Okay. There's a Jain Tulu, there's a Brahmin Tulu, there's a common Tulu.
बहुत डिफिकल्ट। वो क्या होता है, कन्नड़ा का थोड़ा संस्कृत का आ जाता है, इधर आपका मलयालम का आ जाता है, सो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस ऑफ तुलु। देयर इज अ प्लेस इन बैंगलोर और आई गेस नियर बैंगलोर जहाँ पे आज भी संस्कृत बोली जाती है, राइट? ऐसा वो मैंगलोर के पास। बैंगलोर के पास ही है। So that's the thing. I mean, this place, this heritage that we have of this language, that needs to come out. And I think Kantara did a good service by. हाँ, it made it very mainstream. Yes, but again they used Kannada for that. हाँ, But they retained some folk songs from Tulu. okay, हाँ, उसमें है, मूवी में है. Okay. It's very good. And for the Tulu people, it was a matter of pride. makes sense. अच्छा, we'll go deep into the world of spirits और क्या क्या possessions होते हैं, but before that, since you were saying कि lineage को track करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, do you know about this practice जो कि नॉर्थ में भी होता है, साउथ में भी होता है, कई जगह you just go to a random temple, मतलब specific temples होते हैं, Records होते हैं. जहाँ records होते हैं. मैं अभी कुछ दिन पहले भी किसी से पूछ रहा था, how do they know, मतलब वो lineage track कर कैसे लेते हैं? मतलब मैं अगर बात करूं, मेरे पापा, उनके पापा 3-4, मतलब आई डोंट नो कितने लीनेज वो बता देते हैं, बट मैं जा रहा हूं, मेरे पापा तो कभी गए नहीं, मेरे दादाजी कभी गए नहीं, बट हाउ डू दे नो? I think it must not work for all communities, only specific communities. Okay. होने चाहिए, मुझे नहीं पता. हाँ, I've never मतलब tried it. सेम मेरा केस है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया. Try नहीं किया गया. And is it applicable for all communities, all castes? Nobody knows. क्योंकि जो मैंने सुना है, it's only for a particular caste or community. जहाँ तक मैंने सुना. Okay. And even in the south temples में there are records of priests and उनके lineage के बारे में वगैरह आता तो है. Okay. But again, it's a leap of faith. कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा, कभी तो भरोसा करना You पड़ेगा. have to do some gene-based, DNA-based tests to understand whether it's the same gene or not. Not. बाकी तो ठीक है, you never know. उतना विश्वास तो होना भी चाहिए. बट अपने यहाँ क्या होता है, तुलु साइड में क्या होता है, वो घर का एक नाम होता है, उसके बेसिस पे वो फैमिली नेम वो काफी पीछे तक यू कैन ट्रेस. Okay. दैट इज वन वे ऑफ गोइंग. बट देन अगर वो नाम कहीं गलत मिला है, देन तो यू आर तो गोइंग हाँ. टू समबडी एल्सेस हाउस. भाई साहब, आप मेरे बिछड़े हुए भाई हैं क्या? पिछले भैया वो सबसे ज्यादा आते हैं प्रॉपर्टी का भी चीज है. ये भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स. क्या क्या है, मतलब लाइक यू व्हाट यू हैव सेड इस बुक में स्पिरिट वर्शिप को दिखाया गया है. देवा, मतलब हम इसको भूत नहीं बोलते हैं या स्पिरिट या कुछ और नहीं बोलते, इन सबको देवा बोला जाता है. बट व्हाट काइंड ऑफ वर्शिप्स आर देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस आर देयर? सो जब मैं यूजुअली इसको एक टाइम पे एक टाइम था जब इसको भूता आराधना करके बोलते थे. ठीक है. Nothing wrong in calling that. But the thing is, भूत वर्ड से ना वो एक Negative connotation आ जाता है कि ये घोस्ट है, ये evil है. इस सब्जेक्ट पे जो इनिशियल जो बुक्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है. वो एसी वर्नल ने लिखा है. एसी वर्नल और रेवरेंड मैनर करके एक पादरी थे, उन्होंने लिखा है. दिस वाज रिटन लाइक व्हाट 50 years ago. Oh, बाप रे. And things have certainly changed a lot. And they came from a different perspective. True. ठीक है. वो जब इसको देखते थे, वो सुपर इम्पोज कर रहे होंगे अपने थॉट्स यहाँ के थॉट्स को, और इन्फॉर्मेंट्स थे जो लोकलाइट्स ही थे, बट मे बी उनके भी थॉट्स इसमें आ गए थे. दे वर लाइक ये क्या हो रहा है, कोई आदमी खड़ा है, उसको अंदर कुछ आ रहा है, जैसे जैसे वो कर रहा है, पोजीशन कर रहा है, फिर उसको मतलब भगवान की तरह उसको देख रहा है. ये देख के कहीं ना कहीं उनको एक पेगनिज्म से मिलता जुलता लगा. Okay. Which was against their way of thinking. ठीक है. That's all. Which is fine. Which is why they call it demon dancers. इनको इन dancers को जिनको हम respect से देखते हैं, उनको demon dancers और devil worship of Tulubas, इस तरह से वो टाइटल देने लगे क्योंकि that was their perspective. Okay. ठीक है. So कहीं ना कहीं और भूत प्रेत वो सब नेगेटिव उसी में जाता है. ठीक है. इवन जब कांतारा रिलीज हुई थी, कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स जो थे, लाइक अरे तेरे आके इसमें ये भूत को मानते हैं लोग, भूत की पूजा करते हैं. तो मेरे को समझाना पड़ता था कि ये वो वाले भूत नहीं. That's a community, मतलब everybody has their own rituals. कल की डेट में कोई बोल सकता है आप आइडल वर्शिप करते हो, आप मतलब एक पत्थर को ही तो पूछ रहे हो, मतलब that is their belief यार, let them do whatever they It is their belief. So the idea behind this book, एक तो वो कंफ्यूजन दूर करना. ठीक है. दूसरा ये कि जो उस टाइम पे, उसके बाद काफी लिटरेचर आए हैं, बट इट वाज मोस्टली इन द रीजनल लैंग्वेज या फिर जो स्कॉलर्स के. And did they do a good job? Yeah. So though that has also evolved. Okay. शुरू के जो स्कॉलर्स थे, they were taking off after the British
वह जहां से वो ब्रिटिश ने छोड़ा था, तो दे ऑल्सो यूज द वर्ड डेविल वर्शिप। ओके ठीक है। एंड उसके बाद जो स्कॉलर्स आए जो लास्ट 70s 80s में थे, दे काइंड ऑफ स्विच टू मोर इंडिजीनियस अप्रोच। They called it जो Deva. कि मेरा भी अप्रोच रहा है। Deva. Yeah. Deva, not Deva, but again, they wouldn't call it devil worship. Okay. Worship. ठीक Now, the approach that I'm taken is ki, give that respect. Deva is a common term. It's not just restricted to some one kind of spirit. Broadly, out of respect. ठीक है That's my perception. ठीक है। Obviously, आप ground में जाओगे तो there are difference of opinions, which is there already. ठीक है So, the idea was to वो जो एक गैप था वो फिल करना था। ठीक है एंड जो मैंने कहा बीच में जो स्कॉलरली अटेम्प्ट से वो भी जो लाइक टेक्स्ट बुक्स थीसिस इस तरह से समथिंग रिटन इन मेन स्ट्रीम इंडियन इंग्लिश बाय मेन स्ट्रीम कमर्शियल राइटर। तो आई थिंक दैट्स व्हाट दिस इज। Okay. And it's a journey, it's not a thesis. It's not True. There's a bit of It's study. your journey, it's your my life. journey, it's what I have observed. I spent time almost 2 months in the region. I was traveling around from village to village. क्योंकि जो इसका जो important एक aspect है वो है ये dances, कोला dances. ओके इसमें वही dancers जो होते हैं उनके अंदर वो अपने अंदर spirit को invoke करके then they get possessed. So that's the possession. ठीक है यूजुअली जब हम पोजेशन की बात करते हैं वही जो फिल्मों में पोजेशन होता है कि भूत आ गया भूत आ है गया, फिर वो बुरा करता है, फिर एक्सॉर्सिज्म होता है। वो 4 stages ऑफ पोजेशन जो गैब्रिएल अमोर एक्सॉर्सिस्ट जो उसमें है, तो वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है दिस इज वॉलंटरी पोजेशन। बट आर देयर एनी गुड देवास एंड बैड देवास? देखो बैड देवास तो नहीं है बट सम अगर bad spirits सी द थिंग इज द बिलीफ इज दैट एक तो छोटे मोटे स्पिरिट्स होते हैं ठीक है हमारे चारों तरफ। दिस इज द फोक बिलीफ। ठीक है। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये ये scientific है, ठीक है। दिस इज द फोक बिलीफ कि ये एक जो है जो हम परसीव कर रहे हैं वो रियलिटी है जहाँ पे सिर्फ हम आप सबको देख सकते हैं, ठीक है। जो मैटर है। अब जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं इसमें कई तरह के एलिमेंट्स हैं, जैसे एक हो गया आपके जो छोटे मोटे जो जैसे पिशाच हो गया या जो इस तरह से इंपिश स्पिरिट्स हो गए, इंपिश गोस्ट्स हो गए, प्रेत हो गए, ये सारे चारों तरफ है हमारे, जो कि बहुत नोटोरियस है, बहुत ही मिस्टीरियस है। उनको अच्छा लगता है अगर 2 लोग चल रहे हैं उनका सर टकराए एक दूसरे से, उनको मजा आता है देखने में। सैडिस्ट है थोड़ा सा सीरियस है। और यही लोग हैं जिनको मतलब दिस वाज द ओल्डर बिलीव्स। ठीक है। इवन एक टाइम पे ये भी था कि जो ओमेन्स होते हैं, जो शकुन अपशकुन जो है, ये सब यही सारी चीजें है हैं। ओके तो जब ऐसे स्पिरिट्स चारों तरफ है हमारे पुराने लोगों की बिलीफ है, तो इनसे हमें कौन बचाएगा? गुड स्पिरिट बचाएगा जो कि ज्यादा पावरफुल है। तो उसके लिए ग्राम देवता, जो सीमा का जो जाग देवता जाग मतलब जगह है। Okay. हिंदी में जगह वर्ड है उसी को तो जाग। में जाग मतलब 4-5 घर होंगे उस एरिया, जो छोटा सा एरिया है विलेज, वो जाग देवता। कुड बी चामुंडी, कुड बी गुलिगा। तो कांतारा में आपने देखा वो गुलिगा है एंड में क्लाइमैक्स में। ओह इस तरह से स्टार्टिंग में पंजुर्ली होता है, पंजुर्ली से गुलिगा बनता है। तो वो सब इस बुक में है कि वो कौन कौन से देव है। कुछ अराउंड 20-25 देव की मैंने ओरिजिन स्टोरीज जितना मेरे से हो सकता है। ठीक है तो इन चीजों से यही स्पिरिट्स है जो मतलब मैंने कहा जो बैड स्पिरिट्स हैं, छोटे मोटे स्पिरिट्स यही डिजीजेस कॉज करते हैं, ऐसा मानना दैट्स अ बिलीफ। ठीक है जैसे चित्त भ्रम हो गया, ये सब इन्हीं के इफेक्ट से होगा। तो ये जो देव है इनको अपीज करने से, इनको खाना खिलाने से, कोला कराने के बाद चढ़ावा होता है भोग का, उससे वो खुश हो जाते थे और इन सब चीजों से बचाते थे, रक्षा करते। ओके और एक रैशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो भगवान मंदिरों में होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको उसका एक्सेस नहीं था, उनके लिए इस कोला के दौरान जो ये पोजेस्ड डेटी साक्षात प्रकट हो रहा है सामने। So instead of an idol, okay, it's a deity in a living body. And somebody who did not have access to the temple because he's from the different community, or maybe some other reasons, whatever the reason. ठीक है। तो उनके लिए it's the that is like God coming in front of you. Okay. आपके सामने है in flesh and blood. There you talk to the Daiva, you tell your problems, या family disputes हो गए, अभी भी वैसा ही होगा। And who's chosen as the Deva?
So, so the dancer is supposed to come from 3 or 4 communities. Okay. We have Pambada, Nalike, Bana, and Parva community. इसी community से आते हैं. Okay. And only they are allowed, the males, not females. Okay. The male is allowed to dress up as the Kola Daiva. Okay. And how often does it happen? ये तो मतलब हर डिपेंड करता है. इट्स mostly it's every year it happens. Oh, once a year. Once a year. Okay, I thought every month वाला ऐसा कोई रिचुअल है. नहीं, every month का नहीं है. जैसे किसी ने मन्नत मांग ली हो, पूरा हो गया, तब भी करा सकते हैं. Okay. जैसे कहीं लगा किसी को नहीं शादी करा दो तो ये कर देंगे. जैसे मेरे वाइफ के जो घर में जो प्रॉपर तो दो साइड से है. मेरी तरह हाइब्रिड नहीं है. हाइब्रिड नहीं है. ठीक है. So उनके घर में क्या है कि कोई फंक्शन हो, जैसे शादी हो गई या बच्चा हो गया, तब कोला कराते हैं. और वहाँ पे सत्य देवते करके एक दैवा है, which is a form of भद्रका. वर्ते हैं सत्य देवते, वर्ते इज वराही, मतलब वो बहुत theories है. ठीक है. See, the thing is, the origins are lost somewhere. Agreed. Folklore And nobody actually documented it, so Exactly. so nobody knows. These dancers from these communities, they are responsible for carrying this legacy forward. Okay. क्योंकि वो जो इसकी जो ओरिजिन स्टोरी है, इसको पारदना कहते हैं. Okay. पारदना को मंत्र नहीं है. ठीक है, स्टोरी है, फोकलोर है मान हाँ, लीजिए. यूजुअली हम पोजीशन या कुछ होता है तो मंत्र पढ़ के वो करते हैं. ये मंत्र नहीं है, पारदना पढ़ते हैं. Okay. वो स्टोरी पूरा वो बोलते बोलते वो खुद के अंदर उस दैव के स्पिरिट को लेके आता है. ठीक है. इसको साइंटिफिक में भी देख सकते हैं. वो मैंने इसमें बुक में. हाँ, मतलब if somebody who does not believe in all this, then what does he derive out of this? It's a form of beautiful artistry. You look at the way they dress themselves up. Yeah, They're it's not professional. beautiful, man. They're not professional True. makeup artists. True. It's only what they have learned by observation. Years of practice. मैं जब वहाँ पे था के साथ, तो वो एक ग्रीन रूम भी नहीं है, एक मतलब ऐसे चादर सा बिछा रखा होता है साइड में, और उस पे सब वहाँ पे वो करते हैं. बच्चे वो देख के सीखते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट दिस, देयर आर बास्केट्स, वो सब जो भी चीजें हैं सब बनाते हैं. वो बनाते किससे हैं? वो कोकोनट के फ्रॉन्ड से बनाते हैं. इट्स नॉट इवन द लीफ, उसको काट के ऐसे ऐसे फ्रॉन्स होते हैं, उससे बास्केट, द ड्रेस आप इसमें देख सकते हो अगर आप. ये दिस इज कोकोनट लीव्स से बनता है, इसको से बोलते हैं. सो ये सब उससे बनता है, या तो अरेका यानी कि सुपारी के उससे, या कोकोनट के. सो ऑल दिस थिंग्स आर क्या डिटेल्ड मेकअप है. So this is all done by them. तो आर्टिस्ट्री है, इट्स फाइन आर्ट्स. और सीखने के लिए आप सोचो साल में सिर्फ 1 या 2 या 4 बार बस अगले लीनेज को मिलता सीखने. So they are busy. वो एक जगह के लिए मैंने बोला. Oh, so they travel across the region. Travel within their jurisdiction. तो इसमें भी controversies है, मतलब मैंने कवर नहीं किया है. पहले क्या होता था, वो एक लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम होता था. Okay. एक लैंड पे जो रहते थे सिर्फ वही अलाउड थे, जो भी वहाँ काम करते. Okay. अब दे कैन ट्रैवल. कुछ लोग इसको कहते हैं कि तो कमर्शियलाइज हो गया है कि यार ये कहीं भी जा सकता है. कुछ लोग कहते हैं कि इट्स ओके, दैट्स हाउ वी वांट, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू ठीक है, दिस इज नॉट माय थिंग. बट व्हाटएवर सेड एंड डन, वही जैसे मैंने कहा, वो इट्स सो ये आर्ट्स का ये आ गया. देन ओरल लिटरेचर, द स्टोरीज, यही बस एक मीडिया है उनके लिए, राइट? सो देयर इज अ पारदना कोटी चेन्नैया करके, देयर आर द ट्विन ब्रदर्स. Okay. Heroes. It's a beautiful story. It's one of the longest folk epics. Okay. Purely retained through oral traditions. Wow. I have actually written my version in this one, but वो तो मतलब किसी ने बोला है, तो वो सुना किसी है, ने रिकॉर्ड किया है, उसके बेसिस पे दो स्कॉलर्स में हैव रिटन द इंग्लिश ट्रांसलेशन. देन बर्नर ने भी वो किया है, मैनर ने भी किया है, जिनके बारे में मैंने बोला था, इन्होंने भी वही सुन के उसको ट्रांसलेट किया है. हाँ, ट्रांसलेट भी किया है. तो that's how until the written word had happened, it was these people who are continuing the tradition. तो वो एक एस्पेक्ट है उसमें. and the whole dance, the dance is, does it change year after year, मतलब centuries after century, does it change? होता होगा ना? see that's what variability in oral literature is all about. Agreed. Folklore. बट वो चाइनीज विस्पर बन जाता है, इसकी अश्योरिटी कौन लेता है कि बने या ना बने? उसका है. एक्चुअली I've gone into that. Okay. मैं जब
I was there in the northern part of Tamil Nadu. वहाँ पे जो मैंने एक डेटे की कहानी सुनी, जब मैं सदर्न पार्ट में आया, उसी नाम की एक डेटी है, बट द स्टोरी इज वेरी डिफरेंट. फिर मैंने पूछा यार वो तो ये बोल रहा था, मैंने वो दूसरी है, ये दूसरी है. So that was so what happens is, say for example, let's say Panjurli, the deity that we saw in Kanta, or yellow color of face, it's Panjurli. I'm just saying this for the relatability of So Panjurli के बहुत टाइप्स हैं. बहुत सारे टाइप्स है. कौन क्या सोच रहा है किसी को पता नहीं है. हाँ, तो क्या होता है, जैसे एक विलेज में देयर इज अ पंजुर्ली, वहां पे एक कहानी है. वो मानना ये था कि ये जो देव है, ये जो स्पिरिट्स है, अगर इनको कोई पसंद आ गया, कोई आया है अटेंडेंस में है या कोई आप जैसा जो भी है, वो उनके बैक पे लैच करके उनके साथ चले जाते हैं. So that's how they move from one village to another, या one house to another. ठीक है. कई बार शादी के बाद बहू के साथ चले जाते हैं, तो उस घर में उसकी स्थापना या उसके घर के बाहर, कुछ घर के बाहर मोस्टली होते हैं, कुछ है जो घर के अंदर भी जिसकी स्थापना. ठीक है. वो सब वो उसमें डिटेल में दिया हुआ है. सो इस तरह से दे ट्रैवल. सो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उधर एक अलग स्टोरी स्टार्ट होती है, वहां पे उसकी अलग मिरेकल्स होंगी. तो इसका और इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 100 साल बाद, 200 साल, आज 300, 400, 500, जमीन आसमान का अंतर होगा. वो एक अलग ही कैरेक्टर बन गए. बस वो नाम में एक सिमिलरिटी होगी पंजुर्ली, बट दी वन कुड बी नामप्पा पंजुर्ली, वन कुड बी अदर, बहुत सारे ऐसे नाम है. कुप्पे पंजुर्ली करके हैं. तो द ओरिजिन स्टोरीज आर मोस्टली लॉस्ट एज इन इंस्टेड ऑफ इधर उधर हो गया है. जैसे एक कलुर्टी करके एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है, फीमेल स्पिरिट है. शी कम्स फ्रॉम दिस स्कल्प्टर क्लैन एंड शी उसके अलग अलग फॉर्म्स है. कहीं पे सत्यम्मा कलुर्टी करके हैं, कई जगह वो अज्जी है, अज्जी मतलब दादी. मतलब इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स है. कई जगह तो मतलब कलुर्टी और सत्य देवते एक ही है करके बोलते हैं, और कई जगह जाते तो नहीं वो अलग है करके बोलते हैं. सो these things are there. Even the origin stories जो मुझे मिला है, one was obviously बर्नर का जो वर्जन था वो, और दूसरे जो स्कॉलर्स के जो रिसेंट वर्जन्स हैं, और कुछ जो मैं ग्राउंड पे जो सुन गया है उनसे जो मैंने सुना, काफी डिफरेंसेस हैं. मतलब ऐसे डिफरेंसेस हैं कि मतलब एक में ये लिखा है कि स्पिरिट को एक आदमी ने मतलब एक्सरसाइज किया था, मतलब उसको रोक लिया था. दूसरी जो लिखा है कि वो डर के भाग गया था. अब किसने क्या सच है, कहीं ना कहीं घुस के आ जाता है. तो मेक सेंस. अब ट्राई टू टेक न्यूट्रल पाथ. ठीक है. बट हाँ, जहां ये वेरिएबिलिटी है जो आपने मेंशन किया, वो भी मेंशन किया कि हाँ इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, क्योंकि यू कांट गिव अ डेफिनेट स्टोरी. इवन आप रामायण देखो, महाभारत देखो. आई वाज अबाउट टू से दिस कि रामायण में भी इतने सारे उसी तरह यहाँ पे भी वेरिएंट्स है. वो भी मैंने एक चैप्टर में लिखा है कि वेरिएबिलिटी है क्या, ताकि जो रीडर्स पहली बार इस बारे में सुन रहे हैं उनको भी उसकी हिस्ट्री को अगर आप वापस से जाओ तो आपको पता चल सकता है. सिंस यू मेंशन कि एक जगह से ही निकले कहीं और चले गए, और वैसे व्हाट इज योर इक्वेशन विद हॉरर? क्या भूत पिशाच एग्जिस्ट करते हैं? वही मैंने कहा ना, वो अनडेड वाला. हाँ वही, मतलब आई एम कमिंग बैक टू दैट सीन बिकॉज एक एस्ट्रोलॉजर ने आपको रैंडमली बोला कि यार कहीं ना कहीं, हाँ ऑरेकल ने, एस्ट्रोलॉजर नहीं ऑरेकल, तो उसने बोला तो मतलब, see the thing is you can't prove these things, right? But sometimes, but after spending so many years into this and doing a lot of research, do you believe, मतलब you're an engineer, you're a educated, working for a corporate, good at job, everything, but do you still believe in it? If yes, you have your own reasons. If no, you have your own reasons, whatever. I still don't choose to reject it. Okay. If that's the right thing. Ah. Because I'll tell you why. Like even when I was started writing this book, इससे पहले एक और बुक आने वाली थी. Okay. It was supposed to be a fiction. Okay. And वो मैंने खत्म किया था, and I was not keeping well. Okay. Physically. Okay. और emotionally also. Some issues. I mean इससे पहले mention किया है briefly book में. तो उस टाइम पे जब
ये एक आइडिया आया था I thought I should do something about this particular regional folklore / mythology इस पे कुछ करना चाहिए. That we thought I pitched this idea to publisher. They also liked the idea. And it's my first non-fiction as well. At least the first part of the book is non-fiction. Non-fiction. Second part is all folk tales of the Daivas. मतलब वो भी नॉन फिक्शन ही है, लेकिन कोई अगर फिक्शन मानना चाहे तो नहीं वो I won't force that. अच्छा ठीक है, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना नहीं, ठीक है, तो क्योंकि obviously वो जो इस कल्चर से डिस्कनेक्टेड है वो नहीं मान सकता, ठीक है, ठीक है, जिसको भगवान है वो मानेगा. हाँ, जो नहीं मांगेगा नहीं मानेगा, ठीक है. तो जब ये फाइनली जब ये मतलब आई हैड टू गो टू तुलनाड 2-3 महीने में जब मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था तो आई हैड, और उस टाइम था कि 2 महीने के लिए आई वाज बेटर बिकॉज ऑफ माय बैक प्रॉब्लम्स. आई वाज नॉट एबल टू मूव अराउंड इजीली. बहुत प्रॉब्लम्स थे. And I was like, or I had contacted a few people to help me out, experts, obviously, but कुछ आ ही नहीं रहा था रिस्पॉन्स भी. आई वाज लाइक यार मैं क्या करूं. ये मतलब बोल भी दिया कि मुझे करना है, डेडलाइन भी बहुत टाइट था, जो ऑलरेडी बुक रिलीज हो रही थी उसको आगे पुश कर दिया, तो इस डेडलाइन में मैं क्या कर पाऊंगा. ऐसा एक सिचुएशन आ गया. तो इवन मैं ये सोचने लगा कि एडवांस लौटा देते हैं, नहीं करते हैं काम. आई डोंट थिंक दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग द राइट हेल्प एंड माय हेल्थ वाज आल्सो प्रिवेंटिंग. उस टाइम मेरी जो वाइफ है शी बिलीव्स इन डाइवर्स अ लॉट मोर देन आई डू. मतलब उस टाइम शी आस्क्ड मी, हम उसके घर पे ही थे, वो जहाँ एंसेस्ट्रल हाउस था उधर ही थे. एंड वहाँ पे उनके घर में जो हैं सत्यदेव थे और वह थे, उनको स्प्रे कर लो, एक दीपक जला लो, गजरा अपने उसका अपने जड़ से होकर चढ़ा लो, बाकी लेट्स सी, डोंट बी डीमोटिवेटेड. किया मैंने, प्रे किया. एंड I don't know what happened. Suddenly, a door opened, as in a metaphoric door. And I started receiving help from people whom I never expected I would get help. Like random people. Like randomly. मैंने जिन लोगों को कहा था कि मुझे हेल्प चाहिए, nobody responded. Out of the blue कोई आया, मैं अच्छा कह रहे हो, I know somebody who can help you. और फिर ऐसे ही उस तरह से मुझे suddenly I started getting help from totally unknown avenues and I started. जब मैं छोड़ के खत्म करना चाहता, I started. I was traveling from village to village, क्योंकि ये कोला जो है सनसेट से सनराइज होता है मोस्टली. अच्छा, सनराइज तक चलता है? मोस्टली वैसा होता है, कई जगह दिन में भी होता है. दिन में तो मैंने नहीं देखा, मतलब होते हैं okay. दिन वाले भी है, बट मोस्टली जो भी मैंने अटेंड किया मोस्टली शाम वाला ही किया. बट मोस्टली फोकलोर्स रात को ही होते हैं. वो एटमॉस्फेयर आता है. I was in Bali. I watched this Kechak dance, which is very similar, which is like a rendition of Ramayana. चक 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 पूरे टाइम बस यही बोलते हैं. मतलब और भी कुछ बोलते होंगे, मुझे समझ में नहीं आया. ठीक है. सेम तुलु में भी आपको नहीं समझ में आएगा. इवन मुझे भी इतना है कि वो पुराने स्टाइल वाला तुलु है, आर्केड तुलु है. तो सडनली आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज स्लीपिंग ऑन, आई मीन मतलब ऑब्वियसली विलेजेस टू विलेजेस जा रहे हैं, कोई बेड वेड तो है नहीं, जहां मिले वहीं पे सो जाते थे. उन डांसर्स के साथ बात कर रहा हूँ, उनकी जो एनर्जी लेवल है वो एक तरह से सिंपल लाइफ, नो हाई-फाई लाइफ. तो सडनली दैट दोस 2 months वेंट लाइक दैट. मुझे भी नहीं पता चला कि मेरे में ये, और एटलीस्ट वो फिजिकल जो प्रॉब्लम थी वो तो फेडेड अवे. एक बार में मेरे को मतलब अदरवाइज तो बैक पेन हुआ तो बिकॉज ऑफ द हाइट. आई एम 6'3", सो या सो दैट डिसअपीयर्ड. अब इसके पीछे maybe it was my determination. I suddenly found that determination इसकी वजह से मैं चलता गया. ठीक है. Yeah, maybe there is. Daivas played a part because they wanted me to do this. That's what my wife chooses to believe. That Daivas what my wife, her parents, my parents. Okay. ये सब यही कहते हैं कि Daivas wanted you to do. क्योंकि बहुत सारे ऐसे coincidences आए हैं. ठीक है. And unbelievable, जो कि मैंने बुक में मेंशन किया है. I was like literally we were घर में बैठे हुए थे किसी के, वहाँ के लोकल लोगों के साथ. वो लोग बता रहे थे कि ऐसे एक देव है, ताकि माने का व्यक्तित्व देव है. वो कहानी मतलब स्टार्ट ही कर रहे थे कि बाहर घंटी बजती है, हम जाके देखते हैं कि 2-3 लोग आए हैं वो फंड्स के लिए, डोनेशन के लिए, क्योंकि उनके यहाँ इसी देव का कोला स्टार्ट होने वाला है. एंड फिर उसी बंदे से मुझे तन्ने माने की एक्चुअल स्टोरी मिल जाती.
Wow. That was a very strange coincidence. एंड उसके बाद तो मतलब सबके सब वो जो मतलब गांव है तो गांव में लोग थोड़ा इसको ज्यादा मानते हैं। Agreed. तो दादा है मतलब दादी माँ थी लोग कह ये तो मतलब ये तो पक्का दे आर वाचिंग यू दे वांट टू डू दिस। एंड वो जो बंदा तो वेरी सिंपल गाय, फोन भी नहीं कुछ भी नहीं, धूप में, और मैं धूप मतलब समर की बात कर रहा हूँ, द हीट समर इज टेरिबल देयर। Yeah. ये बंदा सिर्फ एक सिंपल स्टेन्ड वाइट शर्ट, वाइट धोती, एकदम टैन मतलब अलग लेवल वाला टैन, एंड सिंपल गाय, नॉट इवन एजुकेटेड इन Contemporary education. yeah, no education at all. Okay. And this guy was one of the officiators in the Gola, in the village Gola. Okay. So not a very hi-fi guy, and very innocent guy. And he was so happy. He told me the story. मैंने पूरा उसके मोबाइल में अपना रिकॉर्ड किया, and मैंने कहा और क्यों आप सुन रहे थे? मैंने कहा नहीं मैं लिख रहा हूँ। मेरी वाइफ ने कहा कि ये लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं। He was so happy. कि somebody is at least वो ये giving कहने us की a मुझे खुशी हो रही है कि मैंने जो कहानी मैंने बोला है वो आपने सुना, और आप जो इसको लिखोगे 4 और लोग पढ़ेंगे, और इस देव की जो गाथा है या जो भी उसकी जो एक ग्लोरी है वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली, so I felt blessed, and he literally blessed me. He was aged. Oh. I was around 60, 65 years से ज्यादा ही, I don't know. You know the skin tone is very different. You can't really gauge. तो he was very happy, blessed, और लिखो अच्छी तरह लिखो है। Went. उसके बाद मुझे वो कभी मिले भी नहीं, बंदा जो है। Wow. Random things. Random things. तो वही मैंने कहा absolutely random things have happened. And जो मैंने कहा जो एक एक्सपर्ट के को मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था। Suddenly out of the blue somebody else put me in touch with another expert. And जो मेरे ही एज ग्रुप का था, तो it was very easy for me, वो दूसरा वाला बहुत एज था, तो एक गैप आ जाता, तो एक लैंग्वेज ब्रो कोड बन जाता है कि चल ब्रो अब समझा दे तो। हाँ, और लैंग्वेज, But you speak Tulu. I speak Tulu, But not at par with that guy, maybe. but their accents could be different, their dialect could be different, but this guy he could speak English as well, so it was very easy. Oh, for sorted. me to- Makes sense. जो nuances है वो मुझे करेक्ट देता था, इस तरह से वो करेक्ट लोगों तक मुझे some force was guiding, and in fact very interesting incident, I have actually mentioned it in the book. So one of the people I was looking for an expert, and I had interviewed an expert in a place called Kudupu. Kudupu is in Mangalore. Okay. वहाँ पे I was speaking to with a mediator. Kola में you need a mediator, like a trans mediumship. Okay. The Daivas, they speak, but you need a mediator who translates it to the common folk. Okay. इस तरह से एक कैरेक्टर होता है। तो I was speaking to one mediator from this Kudupu, उससे बात करी, and मैं उस दिन वापस मैंगलोर में अपने होटल रूम में जाके रेस्ट कर रहा था। उससे एक दिन पहले की बात है, उस टाइम मैं ढूंढ रहा था, आई वांटेड मोर सच पीपल जिससे मैं कम इंटरव्यू ले सकूं। Apparently one guy, one mediator who was in another part of further south of Mangalore, वहाँ पे थोड़ा अलग वे है, it's very different from the northern Mangalore में बोला थोड़ा अलग है, अच्छा, केरला साइड में और अलग है, बट दिखने में सेम होगा नहीं, थोड़ा वेरिएशंस आते हैं, especially towards south ज्यादा वेरिएशंस आता है। This is from I think southern part of, वो थोड़ा अलग दिख रहा है। ओके। वो मतलब मेरे कलर्स चेंज हो, अग्रीड है, मतलब मैं शायद नहीं समझ पाऊंगा। नहीं समझ पाओगे, साथ में पिक्चर्स रख दे तो आप समझ जाओ। ओके। Anyway, so this guy was there and he was mediating some Kola, and suddenly उसके साथ भी यही हुआ, वो Kola वाले उसने मतलब पोजीशन के स्टेट में he grabbed this and said, somebody is coming looking for you from a faraway land, and be prepared to glorify जो भी है स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए। And he was clueless, and फिर वो जब शाम को घर मतलब शाम को नहीं नेक्स्ट डे वही मॉर्निंग में जब वो घर आया इसके बाद, so he got a message from my common friend कि ऐसे ऐसे एक राइटर है पुणे से आ रहे हैं, see if you can help me with the concept. I got the number and we connected, and he told me this कि ऐसा ऐसा मुझे एक forecast जैसे मिल चुका था। So again it is a coincidence, but if you believe, you believe. If you don't, you don't. Otherwise, it's pure coincidence. That's it. Makes sense. My last question to you is, and we'll then quickly wrap this up. For all those people who don't believe in bhoot, pishach, spirits, or God, for anything,
what do you have to say to them if they have the mindset to actually explore something new, if they have the mindset to understand something which they currently do not understand? I'm not saying they should completely indulge into the world of spirits or God or whatever you want to call this, but अगर किसी का मन है कि I really want to know more about it, how should they go about it? Are there any books? Are there any piece of literature or any videos or this or that? Anything. This can have like the connotations of horror, of God, or maybe like spirit worship. So first of all, अगर आप इसमें जाना चाहते हो, make sure you don't fall into the wrong hands. That's the most important thing. There are a lot of बहुत exploitation होता है, खा भी देंगे लोग आप. हाँ. Obviously. So you have to be very careful. You have to, एक वो विवेक होता है ना आपका, जो एक बुद्धि इंटेलिजेंस, उसको यूज करो. Don't believe anything blindly. Even अगर मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी लिखा है वो सच है. सही बात है. आप अपना इंटेलिजेंस को यूज कीजिए, ठीक है. If you want to learn about spirits, then again, किस कल्चर से आते हो, वो इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से जाओगे, which is the most commonly spread idea of spirituality in the urban English speaking people in India. It's very different. It's very foreign. So आप अपने कल्चर से जुड़ के देखिए, आपके कल्चर में उसको कैसे देखते हैं. मे बी रीजनल लिटरेचर में देखिए क्या आपको मिल सकता है. So for me, I think you will get a lot of things in your Puranas and mythology as well. Plenty of things. You don't have to believe it like, उसको फैक्ट की तरह मत देखिए. अगर आपका स्टोरी टाइप देख लीजिए, स्टोरी की तरह देख लीजिए. You will get a lot from that itself. जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, देयर इज अ टेक्स्ट कॉल्ड नेत्र तंत्र. ओके. सैविक कश्मीरी टेक्स्ट है. उसमें लिखा गया है कि ये भूतों को शिव जी ने कैसे बनाया. ओके. तो यू हैव टू एक्सप्लोर दैट, बिकॉज जो आपको बाकी जो ये स्पिरिट है, स्पिरिट वर्ल्ड है, वो बहुत ही वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से आता है. और आप शायद रिलेट ज्यादा नहीं कर पाओगे. मतलब देयर इज नथिंग बैड इन एक्सप्लोरिंग दैट एज वेल, बट स्टार्ट फ्रॉम, ये नर्सरी होना चाहिए, वो 12th ग्रेड होना चाहिए. थिंग इज, जो आपका जो रिलेट ना करें, रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फिल्में, हाँ, उसने हमेशा वही देखा है. बॉलीवुड फिल्में हैं या हॉलीवुड से इंस्पायर्ड बॉलीवुड या रीजनल फिल्में, उसमें वही थीम फोकस किया, क्योंकि उनका इंस्पिरेशन इज दैट स्पिरिटिज्म या स्पिरिचुअलिज्म. एग्जॉर्सिज्म, हाँ, वो थोड़ा वही ओवरलैप करता है. ठीक है. अपने यहाँ उसको क्या करते हैं आप, वहाँ और फादर इन हेवन बोल देते हैं, यहाँ पे भूत प्रेत निकट, वही एक एप्रोप्रिएशन हो रहा है. उसको हटा के आप वो जानना चाहते हो, बहुत अवेलेबल है. जैसे एग्जॉर्सिज्म पे फादर कैपरल बहुत की बुक है जिसमें उन्होंने पोजीशन के बारे में लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो अगर आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना है. तो अपने यहाँ तो बहुत कुछ है. आप अपने लोकल लोर्स को देखिए, पहले रीजनल माइथोलॉजी देखिए. अगर आप जैसे हमने बोला, आप जबलपुर से, राइट, बट ओरिजिनली बंगाली, सो बंगाल साइड में इतना कुछ है. जो अकल्ट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. जबलपुर मध्य प्रदेश, वहाँ का जो एक ऑकल्ट है उसको एक्सप्लोर करें. जो हमारे पुरानिक जो माइथोलॉजी जो ऑकल्ट है उसको एक्सप्लोर करें. उसमें उसके बाद आपको मतलब दैट्स लाइक योर ग्रेजुएशन थिंग. वो बेसिक वाला तो वहाँ पे है ऑलरेडी, एग्जॉर्सिस्ट वाला. True. वो बहुत सिंपल, बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं. मेक सेंस. इवन रिलीजन भी उसी तरह से है. सिंप्लीफाई करके जो आता है वो है कि हाँ, देयर इज दिस थिंग या व्हाटएवर इट इज स्पिरिचुअल. सो इफ यू हैव टाइम, एक्सप्लोर. बट वो जाके आपको कहता है कि ऐसे करने से ये होता है, तो मत सुने भाई, अपना दिमाग यूज करो और खुद पढ़ो. मुझे नहीं लगता कि आपको हर चीज के लिए टीचर की जरूरत है. इतना रिसर्च अवेलेबल है दुनिया में. खुद सुनो, दिमाग लगाओ, शांति से सीखो. इवन जो रिसर्च है, जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, मेक श्योर दैट द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द कंटेंट इज जेन्युइन. ट्रू. दैट्स आल्सो अ वेरी बिग कंसर्न दीस डेज. ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड स्पीकिंग टू अस. दिस इज अ ब्रांड न्यू बुक बाय के हरि कुमार कॉल्ड, नाम तो देख रहा है, called Deva, Discovering the Extraordinary World of Spirit Worship. This is by HarperCollins. बहुत बहुत शुक्रिया. And for all those people who really want to explore this and go deep into this, grab it from the nearest bookstore or online. सब जगह मिलता है. शुक्रिया. थैंक यू जी. बहुत मजा आया भाई.